ماں کی بات نہ مانو کیسی اولاد؟ امام کو مانو، امام کی بات نہ مانو کیسا مقصد ہے؟ حسین کو مانتے ہو، حسین کی بات نہیں مانتے کیسا حسین؟ کہا ہم مرید ہیں، ٹانگ کے لے چلیں گے۔ چلتا ہے کہ ٹانگ کے نہ ہم چل رہے لایا۔ غوث پاک نے کہا کہیے کیسے آنا ہوا؟ ارے کہا سرکار آپ سے ڈھکا چھوٹا ہے، ہم کا تہجد پڑھنے آئے تھے، چور آدمی چوری کرنے آئے تھے، کہا شرمندہ کرنا ہے۔ حضرت نے کہا رات کیسی گزری؟ ارے کہا سرکار آپ سے ڈھکا چھوٹا ہے، گٹری چڑھا رہے تھے اتار رہے تھے، اتار رہے تھے، رات بھر تو یہی ہوا، آ رہی تھی جا رہی تھی، جا رہی تھی آ رہی تھی، آپ سے کوئی ڈھکا چھپا ہے۔ ولی تو دل کی بات جان لیتا ہے، ولی تو وہ ہے جو دل کی بات میں جان لیتا ہے۔ مزار میں لیٹا ہے لیکن سب کی خبر رکھتا ہے۔ وہ پیر کیسا جو مزار میں لیٹ کر اپنے مرید کی خیریت نہ سمجھے؟ سرکار غوث اعظم بڑے پیر فرماتے ہیں مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها، میرا مرید دنیا میں پورب کنارے پر ہو اور میں پچھم کنارے پر ہوں اور اس کا کپڑا کھل جائے تو ہم کو پکارے، ہم وہیں سے ہاتھ بڑھا کے اس کا بطن چھپا دیں گے، اس کا عیب چھپا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ پیر اور مرید کے حال کو نہ جانے۔ وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شرابی گیا، کہا حضور ہم کو مرید کر لیجیے۔ کہا کہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے مرید کر دیا۔ کہا مگر ایک شرط ہے۔ کہا ایک شرط ہے؟ کہا کیا؟ کہا کہ ہم شراب پیئیں گے، ہم شراب پیئیں گے۔ ہمارے ایسا مولوی ہوتا دوڑا کے مارتا، مگر وارث پاک تھے، عالم پناہ تھے۔ کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، منظور ہے، ٹھیک ہے ہم مرید کریں تم شراب پیے گا۔ آپ بڑی خوش ہو گیا، ارے واہ کیا پیر ملا، مرید جی کر دیا، پینے کا پرمیشن بھی لے لیا۔ مگر وارث پاک کی دور بھی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ کہا میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میرے سامنے مت پیے گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ سامنے پیے گا؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا بات پکی؟ کہا بات پکی۔ باہر سے گیا، خرید کے 2-4 بوتل دے دیا، گھر میں گیا گلاس میں ڈالا، جب پینا چاہا تو دیکھا کہ سرکار وارث عالم پناہ جلوہ گر گلاس میں جلوہ فگن ہے، مسکرا رہے ہیں۔ وعدہ تھا کہ ہمارے سامنے مت پیے گا، کیسے پیے؟ بڑا پھر کھڑکی دروازہ سب بند کیا، دوسرا بوتل ڈالا، پینا چاہا، پھر سرکار مسکرا رہا، کھڑکی دروازہ بند ہے کدھر سے آگے پینا؟ کونا میں گیا، ایک دم کونا میں، تیسرا بوتل ڈالا، بوتل پہ بوتل ڈال رہا، وارث پاک سامنے نظر آ رہے ہیں، وعدہ ہے سامنے نہیں پیئیں گے، بوتل پھینکا، گلاس پھینکا، وارث عالم پناہ کی خدمت میں گیا، کہا سرکار آپ نے وہ شرط لگا دی کہ میرا بوتل چھوڑ دیا۔ دیکھو اللہ والے کس طرح شرابیوں کا شراب پھراتے ہیں، کس طرح پاپیوں کا پاپ پھراتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت وارث پاک، فیضان وارث پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار وارث عالم پناہ آرا شہر میں ایک بار گئے ہیں، سن لو، بہار میں بہت مشہور شہر ہے آرا، ایک بار گئے۔ ان کا ایک مرید تھا حاجی صاحب، وہاں حاجی صاحب کو خبر ملی کہ وارث عالم پناہ ننگے پاؤں چلتے ہیں مگر پاؤں میں دھول نہیں لگتی، پاؤں میں دھول نہیں لگتی۔ تو مرید تو تھا لیکن آزمانے کے لیے اپنے پیر کو دعوت دیا۔ وارث عالم پناہ آرا میں گئے، دھرارا محلہ میں،
दावत वगैरह। रास्ते में उस मुरीद ने पानी गिरा दिया, जानबूझ के कीचड़ कर दिया। उसके बाद सफेद चादर बिछाया, उसके बाद दस्तरखान पे खाना बिछाया, कहा हजरत चलिए खाना खाने। हजरत मुस्कुराते हुए उसी रास्ते से गए, कीचड़ में पांव रखा, चादर पे पांव रखा। अब वो गौर से देख रहा है, कहीं दाग नहीं, कहीं दम नहीं, कहीं कुछ नहीं। दस्तरखान पर गए, कहा हजरत खाना खाइए, कहा नहीं। कहा हुजूर खाना खा लीजिए, कहा नहीं। तीसरी बार कहा कि खाना खा लीजिए, कहा तुमने जिस नीयत से बुलाया था वो काम हुआ कि नहीं? तुमने जिस नीयत से बुलाया था वो काम हुआ कि नहीं? वो हाजी साहब मुरीद थे, नहीं समझे कि बुजुर्गों को आजमाना नहीं चाहिए। पांव पर गिर गए, माफी मांगा, वारिस आलम पनाह ने माफ कर दिया, सीने से लगाई। सरकार वारिस आलम पनाह मुस्तनद वली हैं, इनकी विलायत में कोई शुबहा नहीं, इनके वली होने में कोई शुबहा नहीं। कोई भी सुन्नी आदमी ऐसा नहीं जो इनको वली न माने। अगर नहीं मानता है तो गुमराह है। कान खोल के सुन लो, हम लोग बरेलवी हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं, वलियों के मानने वाले हैं, तमाम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। तीरों के पांव को धो के पीना अपने लिए बायस से वारिस आलम पनाह का मर्तबा तुमको मालूम है? शायद तुमने नाम सुना है, तारीख नहीं पढ़ी। वारिस आलम पनाह का जमाना और बरेली के आला हजरत का जमाना एक ही गुजरा है, एक गुजरा है। अक्सरों बेशतर वारिस आलम पनाह से और आला हजरत से मुलाकात होती थी, और आला हजरत को वारिस आलम पनाह बेपनाह मोहब्बत करते थे, मानते थे। बल्कि एक किताब में मैंने तो यहाँ तक देखा कि इमाम अहमद रजा को आला हजरत का जो खिताब दिया है वारिस आलम पनाह ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा इमाम अहमद रजा फाजरे बरेलवी से मुलाकात हो गई। सरकार वारिस आलम पनाह की बहुत खुश हुए और क्या फरमाया? सब हजरत हैं। क्या फरमाया? सब हजरत हैं, आप आला हजरत हैं। सब हजरत हैं, आप आला हजरत हैं। औलादे रसूल ने आला हजरत कह दिया तो आज बरेली के इमाम अहमद रजा को पूरी दुनिया इसलिए अंदाजा लगाओ, वारसी बरेलवी से अलग नहीं है और बरेलवी वारसी से अलग नहीं है। जो लोग अलग कर रहे हैं उन्होंने हकीकत को नहीं समझा। वारिस आलम पनाह आला हजरत को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। वारिस आलम पनाह की खिदमत में एक साधु आया। साधु लंगोट पहने हुआ, 111 लिखा हुआ, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमंडल, पूरे बदन पे भभूत मले हुए, छाई बम बम कहता हुआ वारिस आलम के पास आया। कहा हाजी साहेब। कहा क्या है? कहा रामनगर जाना है, रास्ता नहीं मिलता। साधु का सवाल सुनिए, रामनगर जाना है, रास्ता नहीं मिलता। वारिस आलम पनाह मुस्कुराए, कहा बहुत आसान रास्ता है। कहा कैसे? कहा अहमदनगर होके चले जाओ, रामनगर पहुंच जाओगे। अहमदनगर होके चले जाओ, रामनगर पहुंच जाओगे। साधु का ये सवाल था, खुदा 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 हम कहते हैं, खुदा नहीं मिलता। वारिस आलम पनाह का जवाब था, खुदा खुदा कहने से खुदा नहीं मिलेगा, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम। सरकार गौसे आजम की खानकाह में चुट्टा घुस गया और मुलाकात हुई। हजरत ने पूछा, बातचीत हुई तो खादिम से कहा इसके साथ क्या किया जाए? खादिम ने कहा हुजूर
بڑے دربار کا بڑا انعام ہوتا ہے اور بڑے دربار کی سزا بڑی ہوتی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں اس کو ایسی سزا دوں کہ یہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے. اب چور بہت پریشان ہوا, کون سی سزا دیں گے؟ ہاتھ توڑیں گے, پیر توڑیں گے, سر توڑیں گے, گھر توڑیں گے, مرنے کے بعد کمپلیٹ. یہ کون سی سزا ہے مرنے کے بعد بھی یاد رکھے؟ بڑا پریشان ہوا. اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا غوث پاک. کہا کیا ہے؟ کہا ملک عراق کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے, وہ جگہ خالی ہے. جیسے کسی ولی کو وہاں ڈیوٹی پر بھیجیے. اب صبح میں ولی کہاں سے ملے؟ سامنے ہی چٹا مل گیا, سامنے یہی چٹا مل گیا. نہ جانے غوث نے کون سا ٹیبلٹ کھلا دیا, نہ جانے غوث نے کون سا مکسچر پلا دیا. ایک نگاہ ڈال کے آن کے آن میں چور کو ڈال بنا. تب نہ ڈاکٹر اقبال نے قلم توڑ دیا. ڈاکٹر اقبال جیسا پڑھا لکھا آدمی قلم توڑ دیا. کیا کہہ رہا ہے؟ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یدے پیدا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. اور آگے چل کے لکھتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. اکبر الہ آبادی جیسا پڑھا لکھا آدمی, اکبر الہ آبادی ہندوستان کا وہ پڑھا لکھا آدمی, اتنا بڑا نقاد ابھی تک ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا. مولوی محمد حسین اکبر الہ آبادی, چیف جسٹس آف الہ آباد ہائی کورٹ. سر سید تک کو نہیں چھوڑا. سر سید کو تو اتنا رگیدہ اس کو بہت تباہ کیا, کھٹیا کھڑی بچھونا گول کر دیا سر سید کا. مگر بزرگوں کی بارگاہ میں جب اس نے قدم اٹھایا کمال کر دیا. بزرگوں کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو قلم توڑ دیا. کیا لکھتا ہے؟ کتابوں سے نقالش کے ہے در سے پیدا, کتابوں سے نقالش کے ہے در سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وہابی نے ہم سے کہا ہم پیر کو نہیں مانتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ کسی کتاب میں پیر کا ثبوت نہیں ہے. میں نے کہا کون کون سی کتاب تم پڑھے ہو؟ کہا بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, نسائی شریف, ابن ماجہ, ابو داؤد, موطا امام مالک, موطا امام محمد. ہم نے کہا ایسا حدیث کتاب ہے, کیسا پڑھ لیو؟ ہاں پڑھ لیو. اس میں کہیں نہیں ملا, کہیں نہیں ملا, کہیں پیر کا ثبوت نہیں ملا. ہم نے کہا ایک کتاب ہم دکھا رہے ہیں, یہ بہت بڑی بڑی کتاب ہے. میرے پاس بخشی کمپنی کی جنتری تھی, بخشی کی جنتری میں نے نکالا. ہم نے کہا دیکھو, کھولا. ہم نے کہا دیکھو پہلے پیج میں لکھا ہے پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ سے. اس کو پیرے نہیں مل رہا ہے. بخاری میں کھوجا, مسلم میں کھوجا, ترمذی میں کھوجا. جنتری سمجھ میں نہ کرے, بخاری سمجھ میں. ہکا بکا رہ گیا. یا اللہ آج تک کوئی مولوی جنتری سے پیر نہیں ثابت کیا. بھائی یہ لوگ بڑے بڑے عالم حدیث قرآن سے ثابت کرتے ہیں, میں کم پڑھا لکھا جنتری دکھائے. ہم نے کہا دیکھ جنتری میں دیکھ, 7 دن کا ہفتہ, 1 دن ہے پیر, 6 دن ہے اس کا مرید. سوموار ہے پیر, باقی دن ہے مرید. جب دن کو پیر چاہیے تو مسلمان کو پیر نہیں چاہیے. دن کو پیر کی ضرورت ہے, مسلمان کو پیر کی ضرورت نہیں. ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا اچھا سوموار کا ہے پیر ہوا, منگل کیوں نہیں پیر ہوا؟ میں نے کہا یہ تم کو پوچھنے کا حق ہے. سوموار اپنی طبیعت سے پیر نہیں ہوا, سوموار کو مصطفیٰ پیدا ہوئے اس لیے ان کے قدم کی برکت سے یہ 3 دنوں کا پیر ہو گیا. اندازہ کرو جس نبی کا پاؤں ایسا ہے اس نبی کا سر تھا. ہم نے کہا کیا خیال ہے؟ کہا پیر میں نے مان لیا. ہم نے کہا چلو ایک کام تو ہوا, پیر مانا تو. کہا مگر ایک بات نہیں مانتے. ہم نے کہا وہ بھی بولو.
बोले पीर में आ लोग फूंक झाड़ करते हैं, दुआ तावीज़ हम नहीं मानते। क्यों? कहा फूंक में कोई पावर नहीं। हमने कहा अगर अभी हम दिखा दें तब, अभी दिखा दे। अबे पत्थर को मनवा दूं मैं, आदमी क्या क्यों? मैंने आला हजरत के शागिर्द से हदीस पढ़ी है, याद रखो डुप्लीकेट मौलवी हम नहीं है, दुग्गी चुप तुग्गी मौलवी हम नहीं है। 14 बरस मैंने हदीस मदरसे में पढ़ा है और आलिम से पढ़ा है और आला हजरत के शागिर्द से पढ़ा है। मैंने कहा अभी मनवा दूंगा, ये तो चुटकी में मनवा दूंगा, ये तो बाएं हाथ का खेल है मेरा, समझाना तो मैं जानता। का फूंक में पावर नहीं। हमने कहा अभी दिखा देता। ए बाबा ए भैया क्या फोटो खींचो यार, फोटो खींचने वाला भी जहन्नम में जाएगा, खिंचवाने वाला भी जाएगा। तुम अगर जाने के मूड में हो जाओ, हमको कहाँ लेके जाना? हम अभी जाने के मूड में नहीं है, आपको जाना है जाइए अकेले, हमको कहाँ लेके जाइएगा? हुजूर की हदीस तुमने नहीं पढ़ी है? फोटो खींचने वाला भी जहन्नम में जाएगा, खिंचवाने वाला भी। नबी की महफिल कर रहे, गौस की महफिल कर रहे और शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हो, यही चीज से हमको चिढ़ है, इन्हीं चीजों से हमको नफरत है जी। इस चीज की बंद करने की जरूरत है। न फोटो खींचो न फोटो खिंचवाओ। शरीयत का कानून, शरीयत मेरे बाप की नहीं है, रसूल पाक की है। रसूल को तुम भी मानते हो, रसूल को हम भी मानते हैं। और यही वजह है कि बरेली बदनाम है। आज जो बरेली से लोग चिढ़ रहे हैं उसकी वजह ये है कि बरेली मरम्मत नहीं करता है। बात बोलेगा खर्रा चाहे गोली लगे चाहे बात बोलेगा खर्रा चाहे गोली लगे चाहे चलेगा। यकन पटल बोलने वाला मैं मौलवी नहीं। उस चुट्टे ने, उसने कहा बदअकीदा ने कि मैं फूंक को नहीं मानता, फूंक में असर नहीं। हमने कहा अगर अभी दिखा दे हम तब प्रैक्टिकल का मान लेंगे। हमने कहा ठीक है। 8 आना खर्च मैंने किया, मोमबत्ती मंगाया, मैंने जलाया। हमने कहा फूंक, मोमबत्ती बुझ गई, मोमबत्ती बुझ गई। हमने कहा अभी तो कहता था फूंक में पावर नहीं, फूंक में पावर नहीं। अबे तेरे जैसा बदमाश आदमी फूंक दे मोमबत्ती बुझ जाए, चूल्हा बुझा हो तेरी बीवी फूंक दे तो चूल्हा लग जाए। तो जब मियाँ बीवी के फूंक का ये हाल है तो वाली से बात के फूंक का क्या कहना, गरीब नवाज के फूंक का क्या कहना, आजम के फूंक का क्या कहना, मुफ्ती आजम के फूंक का क्या कहना, मुफ्ती आजम के फूंक का क्या कहना, मुजाहिद मिल्लत के फूंक का क्या कहना, हाफिज मिल्लत के फूंक का क्या कहना। अल्लाह का शुक्र है बड़े से बड़े मुखालिफ को मिनटों में मैंने बनवा दिया। कहा हजरत मैंने फूंक भी मान लिया। हमने कहा चलो एक काम तो हुआ, पीर भी माने फूंक भी माने। हाँ अब यह है कि पीर के नाम पर कुछ लोग दुकानदारी कर रहे हैं, पीर के नाम पर कुछ लोग कारोबार कर रहे हैं। हाँ इसको भी बदलने की जरूरत है, इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। कुछ लोग मौलवी के नाम पर दीन को बेच रहे हैं, इसको भी बदलने की जरूरत है ना भाई। मौलवी भी डुप्लीकेट मार्केट में बहुत घूम रहा है, टोकरी का टोकरी। इतना मौलवी हो गया कि मत पूछिए, डुप्लीकेट मौलवी। कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, अब पैजामा इतना ऊंचा के लगता कि नैनीताल जेल से छूट के अभी आ। कुर्ता बड़े भाई के पैजामा छोटे भाई का। टोपी है कि तकिया का खोल, 5 किलो चावल लटेगा। अब दाढ़ी इतनी लंबी चौड़ी बदअकीलों की, जैसे कोडरमा झारखंड का जंगल, गौरैया घुस जाए तो निकलने का रास्ता नहीं। जगह जगह ये इज्तिमा करते हैं और उस इज्तिमा में क्या कहते हैं, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। वारिस से मत मांगो, ख्वाजा से मत मांगो, गौस से मत मांगो, पीर से मत मांगो, बड़े पीर से मत मांगो। जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता। राम नहीं समझाता, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता। और सवेरे 6 बजे नाश्ता बीवी से मांग रहा है। झगड़ा हमारे बरेलवी सुन्नी उलमा ने कहा क्यों के डुप्लीकेट, रात भर खुद समझाया, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता।
तो नाश्ता बीवी से क्यों मांग रहा? अल्लाह से मांग। जब पकड़ा है तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। झट इसने रंग बदला कम। आप नहीं समझिएगा, अब इसका पैतरा देखिए, आप नहीं समझिएगा। अबे मदरसा में 14 बरस हम लोग पढ़े, हम लोग हाथ छीड़े। बुखारी हम समझे, तिरमिज़ी हम समझे, मुस्लिम हम समझे, मंतिक हम समझे, फलसफा हम समझे, हयात हम समझे, हिंदसा हम समझे, रियाजी हम समझे। ये नहीं समझते हैं? समझा ना हमको? बोले नहीं आप नहीं समझे। कहा मतलब? कहा हम लोग जो बीवी से मांगते हैं खुदा से नहीं मांगते हैं। तो सुन्नी उलमा ने तड़प के कहा, कौन सुन्नी मुसलमान वारिस पाक को खुदा समझ के मांगता है? कौन सुन्नी मुसलमान इमाम हुसैन को खुदा समझ के मांगता है? कौन सुन्नी मुसलमान गौसे पाक को खुदा समझ के मांगता है? कौन सुन्नी मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज को खुदा समझ के मांगता है? बात तो क्लियर हो गई। मांगता तू भी है, मांगते हम भी हैं। तू दुनिया वाले से मांगता है, हम अल्लाह वाले से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुत्तकी आला हज़रत, फैज़ाने वारिसे पाक, फैज़ाने वारिसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डुप्लीकेट मौलवियों से बचो। खाता ये भी है और खाते हम भी हैं। जरा सा फर्क है मौलाना, ये जेल की खिचड़ी खाता है, हम हुसैन का खिचड़ा खाता है। ये बकरे का कपूरा खाता है, हम सम्राट का हलवा खाता है। ये काला कौवा खाता है, हम गौस का मुर्गा खाता है। दिल्ली ये भी जाता है, दिल्ली हम लोग भी जाते हैं। ये दिल्ली काफिर की मरघट पे जाता है, हम दिल्ली महबूब इलाही की चौखट पर। इसे मरघट अच्छी लगी, हमें बुजुर्गों की चौखट। खड़ा ये भी होता है, खड़े हम भी होते हैं। ये नेता की ताजीम में खड़ा होता है, हम रसूलुल्लाह की ताजीम में खड़ा होते हैं। कुरान ये भी पढ़ता है, कुरान हम भी पढ़ते हैं। ये काफिर के मरने पे कुरान पढ़ता है, हम मुसलमान के इंतकाल पे कुरान पढ़ते हैं। चूमता ये भी है, चूमते हम भी हैं। ये बीवी बच्चों को चूमता है, हम बुजुर्गों के गागर को चूमते हैं, हम बाबा के चौखट को चूमते हैं, हम वारिस पाक के देवली को चूमते हैं। इसलिए नकली मौलवी से बचो और नकली पीर से भी बचो। ऐसे पीरों से बचो जो शरीयत के खिलाफ वर्जी करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, गांजा पी रहे हैं, ताड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मोछ बेढंग, दाढ़ी बेढंग, कपड़ा बेढंग, 10 को अंगूठी इसमें, 20 को अंगूठी इसमें, रोजा नमाज कुछ नहीं, गांजा पी रहे हैं, ताड़ी पी रहे हैं, पत्ता खा रहे हैं, 10 को चम्मच आगे, 10 को चम्मच पीछे, 10 को मुरीद आगे, 10 को मुरीद पीछे। हटो बढ़ो, हटो बढ़ो। कुछ मत बोलिए, हजरत पहुंचे हुए। हजरत ये पता नहीं कि हजरत शैतान क्या पहुंचे, कहाँ पहुंचे। वाली से पाक पहुंच के नमाज नहीं छोड़े, गौसे पाक पहुंच के नमाज नहीं छोड़े, अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज पहुंच के नमाज नहीं छोड़े, ये पहुंच के इबादत नहीं छोड़े, ये पता नहीं कहाँ पहुंच गया, पहुंच के नमाज छोड़ दिया, पहुंच के नमाज छोड़ दिया। मुझे कहने दो, ये लोग खुदा के पास पहुंचे हैं इसलिए पहुंच के नमाज नहीं छोड़े, ये शैतान के पास पहुंचा है, ये पहुंच के नमाज छोड़। पानी पियो छान के, तीर पकड़ो पहचान के। अगर सिर्फ लंबा लंबा चूल बढ़ा देने से आदमी वली हो जाएगा तो जितना भालू है सब वली हो जाएगा। अगर सिर्फ सर छिला देने से आदमी वली हो जाए तो जितना कछुआ है वली हो जाए। हवा में उड़ने से अगर आदमी वली हो जाए तो जितना मच्छर है सब वली हो जाए। पानी पर चलने से अगर वली हो जाए तो जितनी मछलियां हैं वली हो जाए। मैंने मुफ्ती आजम जैसे वली को देखा है, मैंने मुजाहिद मिल्लत जैसे वली को, मैंने मौलाना हस्मत अली पीलीभीती जैसे वली को देखा है, मैंने मलिकुल उलमा जैसे आलिम को देखा है, मैंने सैयदुल उलमा को देखा है, मैंने बुरहान मिल्लत को देखा है, मैंने हाफिज मिल्लत को देखा है।
हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। न हवा उड़ने का नाम वली है, न पानी पर चलने का नाम वली है, नबी की सुन्नत पर चलने का नाम वली है। नबी की सुन्नत पर चलने का नाम वली है। पानी पियो छान के और पीर पकड़ो पहचान। नकली मौलवी से बचो, नकली पीर से बचो। समाज को सुधारो, समाज को सुधारो। सरकार बड़े पीर की जिंदगी सुनोगे? सुना नहीं? मुर्गा जिलाया ये तो तुमने सुना होगा, मुर्दा जिलाया ये तो तुमने सुना होगा, बुढ़िया की कश्ती निकाल दिया ये तो तुमने सुना होगा, डूबी हुई बारात को निकाल दिया तुमने सुना होगा। आओ सबसे बड़ी करामत गौसे पाक की सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी करामत गौसे पाक की सुनो। शरीयत के खिलाफ कभी भी गौसे पाक न एक लफ्ज बोले न एक कदम चले, ये सबसे बड़ी करामत है। हवा में उड़ने से वली नहीं होगा, पानी पर चलने से वली नहीं होगा। अगर कोई हवा में न उड़े, पानी पर न चले, लेकिन सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो वो अल्लाह का वली। सरकार गौसे आजम बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह, जानते हो उनकी जिंदगी कैसी गुजरी? अल्लाह, 17 बरस खाए नहीं और 40 बरस सोए नहीं। तब आज गौस का मुर्गा कुकड़ू को बोल रहा है, तब आज गौस का झंडा लहरा रहा है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना साथ में मिलकर खुले गुजार। अब बताओ 17 बरस गौर से पाक का खाए? गौर से सुनो, तकरीर बहुत तुमने सुनी हो। 17 बरस गौर से पाक दाना नहीं खाए। क्या खाए?